It is my esteemed privilege to introduce Madam Anuradha Shankar, a distinguished former Indian Police Services officer whose illustrious career reflects integrity, leadership, and unwavering commitment to public service. A recipient of the President's Police Medal for Gallantry, the President's Police Medal for Distinguished Service, and the Police Medal for Meritorious Service, Ma'am has served the nation with distinction for over 3 decades, retiring as the Director General of Police. Her dedication to ethical governance, institutional excellence, and community service continues to inspire future generations. Her wealth of experience in public administration and leadership brings invaluable insights to the Chhatra Paryavaran Sansad 2026. We are truly honored to have her guidance and mentorship with us today. Ma'am, I would like to extend a warm welcome to you on all our behalf. I will now request Anuradha ma'am to commence the session. Ma'am, namaskar. Just before you start, may I just request the students to please switch on your cameras. Please switch on your cameras. Thank you, Kirti. And before ma'am starts, I must tell you, children, that she's had taken a lot of pains to be here with you. She's just traveled back from Zurich, and after her jet lag and all the troubles, उन्होंने स्वीकार किया कि वो आज बच्चों से चाहे जैसे भी होगा आज बात करेंगे. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. प्लीज मैम, थैंक यू सो मच. प्लीज टेक ओवर. You are on mute, ma'am. You are on mute. Thank you, Anshumanji, and thank you, dear Kirti, for such a generous introduction. And I'm really, it's my absolute pleasure to be here with you. And just to clear my mind, I went to see Odyssey in the morning. And when you called me, I was actually, it was the interval. India में तो कैसा भी फिल्म रहे उसमें इंटरवल देना ही है उनको. So, you know, just as, you know, they were just, Penelope was despairing of Ulysses' return, that interval came. Anyhow, so I don't know, Jabalpur में Odyssey लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? Is it there in the cinema halls? I am a bad person to ask that question. I think one of the children can tell us. Children may answer. Huh? Yeah, but I think there, ma'am. Yeah, anybody anybody who wants to see the consequences of war is invited to see that film. And in any case, I'm a Nolan fan, and the last film was also about consequences of war. And I was just thinking yesterday, and we just suddenly decided, because I was not feeling very nice about many things, and we thought in the morning we'll just go and see even worse. So thank you for calling me over. It has been a bit of a long trip. Please tell me if you want me to speak only in English or in a combination of Hindi and English. Bilingual would be better. Bilingual will be fine. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है हिंदी बोलने में भी और अंग्रेजी बोलने में भी, थोड़ा बहुत बांग्ला बोलने में भी, और मेरी मातृभाषा मैथिली बोलने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी. तो what I want to talk to you about is and because I think of you know, good quality literature and good quality films as a reflection of human creativity, so I will give you a lot of examples from that. मैं अभी आज सुबह ओडिसी देख कर आई. नोलन की जो पिछली फिल्म मैंने देखी थी, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज फिल्म क्राफ्ट. ओपेनहाइमर आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं देखी. ओपेनहाइमर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और हिंदुस्तान के लोग इसको बड़े गर्व से कहते हैं कि जब पहली बार ओपेनहाइमर ने जब एटम बॉम्ब का ट्रायल किया, तो he said a line from the Bhagavad Gita about and it's a horrible thing कि आप जब मृत्यु का सबसे बड़ा औजार बनाते हो तो आपको भगवत गीता याद आती है. And he says, I am become death, and he says that the light is like Shat Surya Sahasrani, like 100,000 suns. My dear young friends, our world is a world of peace. I'm very convinced about that. Let me tell you, because most of the times we have been at peace. Humankind has been at peace. If it had not been at peace, we would not have been, you know, from 10,000 to 8 billion. इतने हम हुए नहीं होते अगर हमें शांति नहीं मिली होती. We have multiplied
And sometimes our peace is toxic to other species. We have multiplied so much that is दुनिया में दूसरी species हजारों लाखों खत्म हो गई. And that is one disadvantage of our multiplication. But the fact of the matter is that मूलतः हम लोग शांति प्रेमी लोग हैं और इसीलिए we sat down and discovered many things. Millions of years ago, the goats, the tigers and us, our ancestors, we were all roaming about in the forest. हम एक ही जैसे थे. We were roaming about in the forest, foraging, getting whatever we got and eating whatever we could get. ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए कि you and I are sitting across scenes and most of us are looking at each other, except for those who probably have less signal or probably have some other things to do. You're all looking very nice. You can open your screens and I'm happy to see all of you. So शर्माओ मत, ठीक है ना? और अगर सिग्नल अच्छा नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ, बट जबलपुर में तो ठीक ही होगा. So I have this firm opinion that we are people of peace. But there is a small group of humans who decided to have more power over other humans. उन्होंने तय किया ये. And in various ways. हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है वो उसका एक रिफ्लेक्शन है, जिसमें कि हमने सर्टेन पीपल डिसाइडेड कि हम उनके दूसरे लोगों के ऊपर अपनी श्रेष्ठता कायम करें, और उसके लिए उन्होंने बहुत तरह के औजार बनाए, उन्होंने बहुत तरह से चीजों को संभाला और उस तरह से किया. इसी तरह से देयर आर पीपल हु डिसाइडेड दैट दे आर, बिकॉज दे हैव अ सर्टेन जेंडर, दे विल बी सुपीरियर टू अदर्स. तो उन्होंने तय किया कि जो भी खेत में जाकर के हल चलाएगा, बाहर जाकर के काम करके पैसे लाएगा, वो बहुत ताकतवर होगा, और जो घर में होगी, जो फैमिली को तैयार रखेगी, बचाएगी, जो कि इस पूरे ह्यूमन काइंड के रीजेनरेशन में सबसे महत्वपूर्ण होगी, वो जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल सिस्टम है वो दोयम दर्जे की होगी. तो देयर आर वेरियस पावर स्ट्रगल्स विच आर कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन, और एक छोटा सा ग्रुप है विच इज पावर हंग्री, और वो ही सब जगह जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ द हंगर फॉर पावर इन सम पीपल. War before war, I want to bring your attention to that. There is a whole preparation of war which comes before war. तो जब आप ये देखते हैं कि अब whether it is a mythological war like हमने महाभारत और रामायण की लड़ाइयों के बारे में सुना है, हमने अभी मैं बात कर रही थी ओडिसी के बारे में, हमने होमेरिक वॉर्स के बारे में सुना है. All these wars, and जब इनके बारे में when you see the poetry about it, when you see the epics about it, the preparation of war is about power. It's about grabbing more and more power. और बहुत अच्छी बात इसमें नोलन कहलवाता है यूलिसिस से कि Agamemnon, all Agamemnon wanted was control over trade routes. मतलब उसको ट्रॉय से कहानी उसने बनाई कि हेलेन को उठा के ले गया, ये किया वो किया. दिस सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज यू मस्ट हैव रेड इन स्कूल. अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी, अब पता नहीं आजकल स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, हम लोग के जमाने में तो पढ़ाया करते थे. सो व्हेन ये अपने देश में भी रावण सीता को उठा के ले गया और इस तरह की चीजें होती रही और इसके लिए पुरुष लड़ते रहे. बट हियर द प्रॉब्लम हियर इज that is it only because of that, or is it because of a sense of control that people want? That there is a sense of control that one side wants and the other side wants to vest it out. और इस sense of control के लिए आज हम देख रहे हैं कि होर्मुज पे लड़ाई हो रही है. किस लिए हो रही है? वो ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके, उसकी कैपेबिलिटी ना हो, इस कल्पना में वहां पे लड़ाई हो रही है, या हमारे शिप्स उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना ईरान को 2 रुपए दिए हुए निकल पाए, इसलिए लड़ाई हो रही है. ईरान के तेल के कुओं पे किसका कब्जा हो, इसके लिए लड़ाई हो रही है. तो देयर आर this whole game is that. So this is the war before war is a very interesting war. It's a war which is not revealed. It's a war which is, जिसको हम उर्दू में पोशीदा कहते हैं. वो एक पोशीदा लड़ाई है, एक छुपी हुई लड़ाई है जो लगातार चलती रहती है. उस वॉर का एक बहुत जबरदस्त एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है. अब आप सोचिए कि पहले क्या होता है, इसकी पहले हम बात करेंगे, फिर हम वॉर के दौरान क्या होता है और वॉर के बाद क्या होता है इसकी बात करेंगे. तो वॉर के पहले जो इम्पैक्ट होता है वो होता है वॉर की तैयारी में द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ वेपन मैन्युफैक्चरिंग.
Weapon manufacturing का complex, we hear about this from ancient times. There are people who used to make weapons. There are, आपको पता नहीं, आप में से कोई लोग, मैं विदिशा के एसपी थी, तो वहां पे मैंने कहावत सुनी कि तुम भेलसा के तोप हो क्या। भेलसा विदिशा का पुराना नाम था, और भेलसा में तोपें बना करती थी, और बहुत आदमी अपने को ज्यादा समझता था तो उसको कहते थे भेलसा की तोप। Now this Vidisha, if you go there, it's a very culturally very rich, very beautiful city with very old ruins. वहाँ पे सांची का स्तूप बगल में है, उदयगिरी की गुफाएं हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जैन मुनियों की तपस्या स्थली है, और वहाँ पर तोपें बना करती थी। So there is this cognitive dissonance जिसको कहते हैं, ये एक जबरदस्त तरीके का हम यहाँ पर देखते हैं। तो weapons manufacturing is an ancient work of a certain group of people since ever. Second World War से weapons manufacturing का लगभग सारा का सारा काम Western world में चला गया। By Western world I mean Western Europe and partly Russia में था, लेकिन by Western world I mean Western Europe and the United States of America and their friends. There was a very small capability in China. मैं Second World War की बात कर रही हूँ. This manufacturing converted its own system into a system which just थॉट कि हमारे को हक है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कैसे भी वेपन्स बना सकते हैं, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट? इफ यू हैव नॉट, प्लीज लुक इट अप। एंड मैनहट्टन प्रोजेक्ट इज, जिसके ऊपर ओपेनहाइमर फिल्म बनाई उसने, मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे आप जरूर देखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गेटिंग ओवर, यूएस के मिलिट्री लीडरशिप ने, इनफैक्ट इंक्लूडिंग देयर प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज अ कमांडर इन चीफ ऑफ देयर मिलिट्री, उन्होंने बेस्ट साइंटिस्ट जो वर्ल्ड के वहां से भागे थे जर्मनी के दबाव में यूरोप से, उनको लिया, और उनको लेकर के उन्होंने बहुत दूर एक अपने डेजर्ट एरिया में रखा, जहां पे कोई जगह अनइनहैबिटेड नहीं होता। दोस्तों, हर जगह कोई ना कोई होता है। यू कैन जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जबलपुर के पास बरगी डैम जहां बना है वहां कोई गांव ही नहीं था, ऐसा नहीं है। पहले वहां गांव थे, वो कुछ हटाए गए और कुछ गांव बरगी डैम में डूब गए। तो ऐसे ही लोग हर जगह रहते हैं। सो देयर वर पीपल देयर इन दोज डेजर्ट एरियाज, और वहां उनको हटा के, और ये न्यूक्लियर बहुत बड़े फिजिसिस्ट, सारे बड़े बड़े फिजिसिस्ट को वहां लाया गया, और वहां रिसर्च किया गया इन बेकिंग, इन न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और बाद में एटम बॉम्ब वहां बनाया गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हेन यू रीड अबाउट मैनहट्टन प्रोजेक्ट। विकिपीडिया भी सही ही बताएगा, कहीं और भी देख सकते हो आप। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। वहां द होल एरिया वाज लिटरली, उसको खाली किया गया। पहला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि जो लोग अपने गांव में रह रहे थे, who were comfortable in their own homes, they were completely displaced. We do not know where they went. And then the experiment which went on there, and you know that आप एटम बॉम्ब सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव मटीरियल से बनाते हो। अभी तो फिर भी रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारा प्रोग्रेस हो गया। उस समय the cost was such that almost every scientist died of cancer. और वो एरिया के लोग, तो साइंटिस्ट तो चलो ठीक है, they were bought into this project, उन्होंने अपने तरफ से voluntarily उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो लोग वहां रहते थे, उनने क्या गलती की थी? उन गांव में जो लोग रहते थे, वो क्या गलती किए थे? आज भी the water in that area in New Mexico is poisoned, and अभी भी वहां पे लोगों को कैंसर हो रहा है। So this kind of the war before war is one of the most horrible things in which you do not know that there is a war going on. और ये जो तैयारी होती है जहां आपको पता नहीं होता, एंड वेरी इनोसेंटली द पीपल, द इकोलॉजी, द एनवायरनमेंट बिकम विक्टिम्स ऑफ दैट। और ये सब जगह अभी लगातार, और अनफॉर्चुनेटली India, which was never a part of this weapon manufacturing combined, India has now become a part of this. It's very sad, but that is how it is. I do not know if you know about this, but this is the reality. अब मैं एसपी होशंगाबाद थी तब की मैं आपको एक घटना बताती हूँ। इटारसी एक जगह है होशंगाबाद के पास में, और वहां पर जो आर्म्स हमारे जैसे बोफोर्स की तोपें हैं, तोपों के लिए जो गोले हैं वो गोले बनते हैं। नाउ द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सच कि उन गोलों को लेकर के, और दे जस्ट लीव इट समवेयर। आई यूज्ड टू गेट केसेस ऑफ यंग पीपल
you know, people like you or maybe younger, जो वहां जाके बच्चे फुटबॉल खेलते थे और उन्हें समझ में नहीं आता था और लेफ्ट ओवर ब्लास्ट का मटेरियल, एक एक्सप्लोसिव मटेरियल फट जाता था एंड चिल्ड्रन वुड गेट मेम्ड, उनके पैर उड़ जाते थे, कई बार बच्चे मर ही जाते थे एंड यूजुअली चिल्ड्रन वुड गेट अफेक्टेड। लोहा चुराने के लिए कई लोग चले जाते थे कि लोहा है, गरीबी ऐसी है हमारे देश की कि कई लोग कुछ भी चुरा के ले जाते हैं, लोहा चुराने के लिए द मेटल ऑफ द बॉम्ब शेल्स ले जाते थे एंड इट वुड ब्लास्ट एंड ईदर दे वुड डाई और दे वुड बिकम हैंडीकैप्ड। नाउ दीज आर थिंग्स जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं होते और एक एक्सीडेंट के रूप में आ जाते हैं, पुलिस भी उसको एक्सीडेंट, क्योंकि देयर इज नो लॉ अबाउट दिस, तो पुलिस भी उसको एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट करती है। एंड देन दीज आर पीपल हुम यू कैन स्टिल फाइंड इन इटारसी in where these things are made। तो ये जो war before war का है prep, ये है जिसके बारे में आपको I just want to call your attention to that। Then during the war, it is something which you have known if you just look at history slowly and one things कि जब ये बड़े wars होते थे, जब physical war आमने सामने के होते थे, तो उस समय ह्यूमन बींग्स, सबसे बड़ा कॉस्ट हम सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स बहुत मारे जाते हैं, है ना, ये सोचते हैं हम, या उनके घर जला दिए जाते हैं। The problem is from Second World War onwards, in fact, by the end of First World War, people started waging chemical warfare and biological warfare. वे पानी के स्रोतों को, the sources of water, sources of and उसमें वो जहर डालने लग गए, chemicals डालने लग गए, so the whole populations would get affected by that। And even if वो नहीं डालते तो भी wherever the bombs fell, wherever this impact fell, उन सब जगहों पे आग लगी, there were fires, there were contamination, and this contamination जो हमारे ecological system को harm करता है, it takes years and decades to recover। I don't know if you know about Chernobyl. Do you know about Chernobyl? If you don't, please note it down. There's this place called Chernobyl in Ukraine. यहाँ पे अभी भी आग लगी हुई है। It's called the hell hole। वो you can see the even on a free place like YouTube, you can check out what Chernobyl is. It's a horror। और वो भी एक failed attempt to recover that place है। Basically it's a nuclear disaster। तो हमने war के दौरान, और अब ये पहले से चलता रहा, अब जो war है जिसको हम कहते हैं, दो प्रकार के war हो रहे हैं अभी। There is a high intensity war which is going on in between Russia and Ukraine, or in Sudan, or in Gaza, और in Iran। ये high intensity wars हैं। In high intensity wars में you can see that people are attacking each other, और वहाँ पे बड़े बड़े बॉम्ब गिरा रहे हैं। They are throwing the whole environment into risk। और ये जो high intensity war है, इस high intensity war में the impact is of course very high and instant। अब आप ये देखिए, you know very well that data centers are in themselves a very they have a very negative impact on the environment। data centers जहाँ भी बन रहे हैं वहाँ पे पानी contaminate हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे जंगल साफ हो रहा है, वहाँ पे soil contaminate हो रहा है। अब ईरान क्या कर रहा है, वो because of its desperation, it is attacking the data centers which have been built in the Middle East। तो ना सिर्फ वो मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे बॉम्ब गिरा रहा है, बल्कि वो डेटा सेंटर्स पे भी गिरा रहा है। क्यों गिरा रहा है? क्योंकि ईरान के जो आम जगह हैं, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, उनके ऊपर बॉम्ब्स इजराइल गिरा रहा है और अमेरिका गिरा रहा है। तो अपने जब युद्ध होता है तो आप, इट्स ऑल जस्टिफाइड इन वॉर। अब ये वॉर जो हो गया, इसके अंदर सबसे खतरनाक जो यूज हो रहा है वो एआई का हो रहा है। आई हैव नो आइडिया इफ यू नो दिस फैक्ट दैट ईरान में जो स्कूल के बच्चों को मारा गया, इट वाज एक्चुअली एक प्रॉपर तरीके से सैटेलाइट इमेजरी से, एआई से उसको पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया। एंड नॉट ओनली वाज इट हिट वंस बट इट वाज हिट ट्वाइस। व्हाई वाज इट हिट ट्वाइस? क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल पे किया गया जहां ज्यादातर ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे, तो उन्होंने वहां पे गिराया, और वो जानते थे कि जैसे ही बम गिरेगा तो माता पिता दौड़ के आएंगे, और वो जैसे ही दौड़ के आएंगे तो उन्होंने सेकंड बम गिराया, सो दैट वो इतना हाई इम्पैक्ट किया कि पूरी फैमिलीज को खत्म कर दिया। लेकिन उसके साथ उसके आसपास में देयर वाज अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां पर के कंटामिनेशन हुआ। और मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो,
ऑयल रिग्स हो या डेटा सेंटर्स हो, इन जगहों पे जब भी इस तरह का होता है अटैक, तो देन द इम्पैक्ट विल ऑलवेज बी, इट गोज अहेड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और वो बढ़ता चला जाता है. इट्स नॉट कंटेन्ड, वो सिर्फ उतनी ही दूर पे नहीं होता, वो जैसे गोलाइयों में बढ़ता चला जाता है और फैलता चला जाता है. सो दिस इज हाई इम्पैक्ट वॉर. देन देर इज, सूडान में भी ऐसा ही हो रहा है. अब देर इज लो इम्पैक्ट वॉर. लो इम्पैक्ट वॉर इज अ कंटिन्यूअस लॉन्ग वॉर, जैसे कि कांगो में चल रहा है, बहुत जमाने से चल रहा है लो इम्पैक्ट वॉर. छोटी स्कर्मिशेस हो रही हैं. और आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक बुर्किना फासो में हुआ है ना, कंबोडिया और थाईलैंड के सीमा पे हुआ, अब इंडिया और पाकिस्तान के सीमा पे हुआ, इंडिया और चाइना के सीमा पर हुआ. इंडिया और चाइना के सीमा पर वॉर के इम्पैक्ट थोड़े से कम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ट्रीटी है ऑफ नो फर्स्ट यूज. नो फर्स्ट यूज का क्या ट्रीटी है कि हम हथियार उनपे गोला बारूद नहीं चलाएंगे और वो हम पे नहीं चलाएंगे. तो हम लाठी वाठी से, हाथ पैर से, मुक्का मुक्की से मरते हैं, जो गलवान की लड़ाई में हुआ. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द गलवान skirmish. So, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस हमारे जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, तो डिप्लॉयमेंट्स आर ऑफ वेरी टॉक्सिक मटेरियल्स. और पाकिस्तान इंडिया के बीच में रहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको पता है कि लगातार लो इम्पैक्ट वॉर हो रहा है. दीज आर ऑल वॉर्स, दीज आर नॉट जस्ट बैटल्स और दीज आर नॉट क्वारल्स. ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर ऑल वॉर्स. और ये जो लो इम्पैक्ट वॉर है, दीज लो इम्पैक्ट वॉर्स हैव दिस द टेंडेंसी टू हैव अ वेरी लो and sustained ecological damage behind in their wake. तो अपने पीछे वो बहुत ही लगातार पर्यावरण का नुकसान लगातार करते चलते हैं, क्योंकि वो रुकता ही नहीं है. क्योंकि एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है रेस्टोरेशन की, लेकिन रेस्टोरेशन का वहाँ टाइम ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ लगातार वो चलता रहता है. और जब भी कोई चीज अगर लगातार आपको कहीं पे आग लगातार लगी रहेगी, बुझेगी ही नहीं, तो आप नई फसल वहां लगाओगे कैसे, उस मिट्टी को वापस जिंदा कैसे करोगे. सो लो इम्पैक्ट वॉर हैज दिस सस्टेन्ड इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डैमेज दैट इट इन्फ्लिक्ट्स अपॉन द एरिया. द थर्ड थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. अब आपको पता ही है, आप यूएनईपी के बारे में जानते हैं, है ना, जानते ही हैं, तभी तो हम यूएन के ही फोरम पे बैठे हैं आप लोगों से बात करने. यूएनईपी के अलावे देयर इज अनदर यूएन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड यूएनडीआरआर. यूएनईपी जो है, यूएनडीआरआर इज अबाउट रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन. ये 2015 में बना. इट्स वन ऑफ द न्यूअर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो ये जो प्रोटोकॉल्स इसके अंदर है, कोई भी प्रोटोकॉल वॉर के हिसाब से, मतलब वो रिकग्नाइज तो करते हैं कि वॉर जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, मगर वो ये नहीं समझ पाते कि इस डैमेज का रिपेयर करने के लिए बाइंडिंग कैसे करना है. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी यूएन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बाइंडिंग कैसे होंगे किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर. क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या जो यूएन के साथ है, जो मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है यूएन के साथ, और हमारे जैसे बहुत लोगों का है, वो है यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल. द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 2 countries which keep starting wars. The Security Council is supposed to impose all sorts of protocols, ना? When 2 countries, जब 2 देश लड़ने लगते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि उनमें झगड़े बंद कराना, उनको जो झगड़े बंद कराने के प्रोटोकॉल है, या रिपेयर वर्क के प्रोटोकॉल है, रिकंस्ट्रक्शन के प्रोटोकॉल है, उनको लागू कराना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का काम है. लेकिन भले आदमी खुद ही लड़ते हैं. आप रशिया को देखिए, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है. अब वो क्यों मेंबर है ये किसी के समझ में नहीं आता. बिकॉज जब 1945 के बाद जब सिक्योरिटी काउंसिल बना, तो यूएसएसआर वाज अ मेंबर. रशिया इज नॉट यूएसएसआर. आफ्टर यूएसएसआर disintegrated in 1989, all the nations should have got together and asked कि भाई रिकंस्ट्रक्ट करो, यूएसएसआर इज नो मोर. इवन चाइना, जो कि 1945 में जो चाइना था, 1949 में वो चाइना बदल गया. चलिए ठीक है, देश की सीमाएं वही रही, ताइवान को अलग करके, ताइवान को छोड़ दीजिए, तो देश की सीमाएं वही रही, तो चाइना मान भी सकते हैं. पर रशिया का क्या, वो क्यों है वहां पर? रशिया वहां पर इसलिए है कि वहां वो यूएसएसआर के बदले में रशिया है साहब. तो वो खुद ही वॉर, कभी क्रिमिया में वॉर करता है, कभी जॉर्जिया पे हमला करता है, और अब तो अभी यूक्रेन में चला जा रहा है. दूसरा जो बहुत महान आत्मा वहां पर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि किसी देश के राष्ट्रपति को ही उठा के ले आते हैं.
और उसके बाद दुनिया भर के झगड़े चलते हैं उनके। तो ऑल दीज थिंग्स आर अ बिग डिफेक्ट in the system of reconstruction and controlling this kind of a war का जो impact, बड़ा impact होता है, इसको इसमें एक बहुत बड़ा problem है। Now what can be done? What is possible? इसके बारे में हम थोड़ा सा फटाफट देख लेंगे, because I want you to ask questions, because सिर्फ मेरी तरफ से बोलते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मुझे चेहरा नहीं दिखता, लोग सामने नहीं होते तो बात करने में उतना अच्छा नहीं लगता। जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो मोस्ट ऑफ यू नो, बट स्टिल आई रिपीट इट। एक तो पोल्यूशन है, आपको पता ही है, जो पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द वेपन्स, बिकॉज ऑफ द फ्यूल स्पिल्स, बॉम्ब्स, इसके चलते जो होता है वो होता है। कार्बन एमिशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस आर अ ह्यूज, इट्स लाइक मिलियन कार्स गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जबलपुर। सो इट्स, उसका कार्बन एमिशन का क्या हालत होगा आप सोच सकते हैं। सो दैट पोस्ट वॉर जो एमिशंस है वो ड्यूरिंग वॉर, पोस्ट वॉर, दोनों तरफ जो लोग रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, इनके हैबिटेट का लॉस होता है। और उसके बाद जो मैंने आपको होशंगाबाद की कहानी बताई, जो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस होता है, अनएक्सप्लोडेड वेपन्स होते हैं, ये होता है। जो ये हमारे तत्कालिक इम्पैक्ट है, जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। सो आई रिपीट इट अगेन, कार्बन एमिशंस एंड लॉस ऑफ जिसको इकोसाइड हम लोग कह रहे हैं, लॉस ऑफ द इकोलॉजी, और जो ऐसा बॉम्ब जो फटते नहीं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में, जब एक बार आपका पानी पोल्यूटेड हो गया, जब आपकी धरती एक बार, सॉइल आपका पोल्यूटेड हो गया, सॉइल आपका बहुत ज्यादा बर्न्ट हो गया, तो उसको रिकवरी करने में उसकी आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो एक प्रकार से बहुत जगहों पे ड्राउट के कंडीशंस हो जाते हैं, बहुत जगहों पे फैमिन के कंडीशंस हो जाते हैं। और वॉर में, ड्यूरिंग द वॉर देयर आर लॉट्स ऑफ बैड एलिमेंट्स हु प्रॉफिट फ्रॉम वॉर, और उसके बाद उसकी रिकवरी में उनके वो जो वॉर प्रॉफिट करते हैं, तो जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बहुत बड़ी हो जाती है। और उसमें जो नंबर ऑफ पीपल हु फॉल अंडर द पॉवर्टी लाइन बिकम्स मच हायर देन व्हाट इट इज बिफोर द वॉर। और उसके चलते द बर्डन ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द इकोनॉमिक सिस्टम इज सो मच कि वो रिकवरी ऑफ नॉर्मल ऑर्डिनरी सिचुएशंस बहुत दिक्कत हो जाती है। और इसके चलते एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है। ये दिस इज बिकॉज देन क्या विशियस साइकिल क्रिएट होता है कि वो फिर वो एंग्स्ट और एंगर होता है। देयर इज डिप्राइवेशन। जब भी डिप्राइवेशन होता है तो एंगर निकलता है। वो एक उसका एक जिसको कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आपने अभी देखा जंतर मंतर पे आप लोगों ने। एक बॉइलिंग पॉइंट था एक इशू को लेकर, एक ही इशू को लेकर था, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं थे, पर एक इशू को लेकर बॉइलिंग पॉइंट था, एंड पीपल केम बॉइल्ड एंड देन द गवर्नमेंट हैड टू लिसन। तो ये चीजें एक बॉइलिंग पॉइंट पे आती हैं और कॉन्फ्लिक्ट होती है। वो तो हिंदुस्तान था और बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई, एंड देयर वाज समवन लाइक सोनम वांगचुक सिटिंग देयर, तो वहां पे बहुत आग नहीं लगी। वरना इन मेनी कंट्रीज देयर आर पीपल जो बर्दाश्त नहीं करते, दे डू नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और इसलिए उन जगहों पर एक ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, जिसका उदाहरण, इफ यू वांट यू कैन चेक आउट व्हाट्स हैपनिंग इन सुडान में। इट्स जस्ट रेट्रीब्यूशन अपॉन रेट्रीब्यूशन, इट्स जस्ट गोइंग इन अ साइकिल। In fact, even in Palestine, what is going on is a cycle. और ये जो साइकिल है, बट पैलेस्टाइन का साइकिल has a different kind of unfairness to it, जिसमें कि बाहरी तत्वों का शुरुआत में ही बहुत खेल है। सुडान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का बाद में बाहरी तत्व फायदा उठाने लगे। इन पैलेस्टाइन देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट, इट वाज अ वेरी पीसफुल कम्युनिटी, एंड सडन बाहरी तत्वों के, विशेषकर जिन लोगों ने हमारे लिए बॉर्डर क्रिएट किया, उन लोगों के कारण वो इम्पैक्ट हुआ। तो ये जो इम्पैक्ट है, अब ये कई बार हमको दिखता है कि ये वॉर्स के बाद के इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट हमको दिखता है, लेकिन हमको इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे हम ध्यान नहीं देते। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया, जिसको आपको मालूम है, हैव यू हर्ड ऑफ द स्कॉच्ड अर्थ थ्योरी? स्कॉच्ड अर्थ, so there are countries which still believe in the scorched earth theory, and जैसे जहाँ पे जीत पाए, लड़ लिया, लूट पाए, और जो नहीं लूट पाए उसको जला कटा के निकल दिए। ये जमाने से चला आ रहा है। This scorched earth theory has been done in many countries. It is being done right now in many places. In many places they are not doing it just because beneath that earth is some of the
मोस्ट प्रेशियस मटेरियल्स इन दिस वर्ल्ड, और उसके लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं. तो दीज आर थिंग्स विच हैपन. और कई बार इसके जो कारण होते हैं, देयर आर पीपल हु आर सिटिंग समवेयर हु हैव नो आइडिया, और वो जाकर कि वहाँ लोकल क्या है रियलिटी, और वो जाकर वहां से काम करते हैं, और उसमें ये इम्पैक्ट होता है कि पूरी की पूरी धरती के लिए एक ट्रेजेडी, एक पूरी ट्रेजेडी होती है. बिकॉज आई एम कमिंग बैक फ्रॉम स्विट्जरलैंड. मैं वहां पर एक समर पीस स्कूल में गई हुई थी, और मैं आपको बताऊं कि उनको महसूस हो गया कि समर किसको कहते हैं. मैं यहाँ से, एक्चुअली सच बात यह है कि मैं ऐसे कपड़े लेके गई थी कि मुझे हमेशा मालूम है यूरोप में थोड़ी सी हल्की सी ठंड शाम को हो जाती है, रात को भी गर्मी हो रही थी. एंड दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ people not recognizing, and I told them, वो बार सारे वो गांधीयंस थे जिनको मैं बात करने गई थी, जो कार्यशाला थी, but I told them that you're thinking of felling of trees, you're thinking of plastic, you're thinking of overconsumption, you're thinking of consumerism, which is all right, ये सब सही है, but why are you not thinking of war? Why are you not thinking of what war does to climate? And लास्ट ईयर मैं एक पीस कॉन्फ्रेंस में रोम गई थी, तो वहाँ पोलैंड के और हंगरी के कुछ बच्चे आए. वो हर साल मेरा वहाँ होता है, और वो हर साल वो बच्चे अलग से सुनने आते हैं. तो मेरे पास आए और बोले कि मैम, हम आपकी बहुत सारी बातों को सुनते हैं और सही लगता है, लेकिन आप मुझे बताइए यह अच्छा है क्या कि हम खुद ही स्ट्रगलिंग कंट्रीज हैं, और हमारी कंट्री में इतने सारे मिडिल ईस्ट के लोग और नॉर्थ अफ्रीका के लोग आके भर जा रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन पूरा हमारा ओवर पावर हो रहा है, क्या आपको ठीक लगता है? मैंने कहा कि बच्चों, तुम अपने यूरोप के ताकतवर देशों को बोलो कि उन बच्चों के, उन लोगों के देशों में लोगों को चैन से रहने दें, वहां हथियार न बेचें, वहां युद्ध न बेचें. इफ दे आर सेलिंग वॉर्स टू मिडिल ईस्ट, if they are selling wars to North Africa, to Sahel, to the Sahara region, if they are selling wars, where will the people go? Because you have poisoned their water sources, you have burnt their earth, you have cleared their forests, you have dug out their mines. Now what are they going to do? So they are coming to you, क्योंकि तुम ही ना उनको वहां पे खोदा है. तो बोला, but we have nothing, Poland is nothing. अरे Poland is part of NATO. You tell NATO not to play around like this. तो ये one place, एक जगह की गलती 10 जगह के मिस्टेक होते हैं. और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो अब यहाँ हम भोपाल में दौड़ के आए, सोचे कि भाई यहाँ बारिश होगी. स्विट्जरलैंड में तो गर्मी लग रही थी, यहाँ अच्छा लग रहा था, कल तो बहुत अच्छा लग रहा था, आज बारिश नहीं हुई तो उमस लग रही है. बिकॉज द होल साइकिल इज इंटरलिंक्ड. द अर्थ इज वन ऑर्गेनिज्म. This is one thing which I want you to understand, that, and not many people in this world will understand, but children from India should understand that for us the earth is an organism. ये एक जीवित व्यक्ति है. पृथ्वी एक व्यक्ति है. हमारी ही संस्कृति ऐसी है जहां हम नदी को व्यक्ति रखते हैं, पहाड़ को व्यक्ति रखते हैं, जंगल को व्यक्ति रखते हैं, और पृथ्वी तो व्यक्ति है ही. और इसलिए हम उसको कई बार माँ कहते हैं, कि वट एवर रिलीजन इट इज, हम इसको माँ कहते हैं, बिकॉज दिस इज द वन हु लुक्स आफ्टर अस. आज इसको बुखार हो गया है, आज धरती को तो बहुत तेज बुखार है, माँ को बुखार है. व्हाई? One of the major reasons is these absolutely continuous wars going on in various areas, and how we can impact it is through our consciousness. और ठीक है, हम बाकी चीजों में कर रहे हैं और हम अपना impact, carbon impact लो कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, but we have to understand that there is absolutely no gain from war. And हमारी ये policy भी है, as a country, as a nation, we are non-aggressor nation. हम कभी भी बाहर नहीं जाते, we don't start wars, we are only defensive, and that is how it should be. तो हम इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, how we can impact this world, how we can discuss this within our friend circle, within ourselves, how we can wake up to the fact that हमें युद्ध बिल्कुल ही नहीं चाहिए, और युद्ध से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता. And I'll just because I don't know how much idea you I think, because मुझे जो मटेरियल पहले दर्शना जी ने भेजा उसमें उन्होंने UNEP के बारे में चर्चा की. यद्यपि मैं उस मटेरियल को रेफर नहीं कर रही हूँ, सॉरी दर्शना जी, अपनी बात कर रही हूँ. लेकिन I would also like you to go through the instruments that UNDRR has and what we can do about that, how we can think about it. So there is
they are talking about the international armed conflict and international non-international armed conflict, like हमारे देश में माओवादी हिंसा जो चलती रही है, या और भी पार्टीजन हिंसा जो अभी मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, एक पार्टीजन हिंसा चल रही है वहां पर, और जो हमारे बच्चे कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं। तो इसके जो UNDRR का जो कॉन्टेक्स्ट है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे जो उनकी स्टडी है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट ऑल्सो। एंड अब आई वुड लाइक टू ओपन दिस स्पेस फॉर क्वेश्चंस because I've been talking for a long while and sharing my ideas with you, but I'm sure that with your questions there are things which I'll be able to share more, or I'm very thankful for this opportunity to address you. I did not have, and I could not prepare for this meeting too much. ज़्यादा बस जो मेरे मन में है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। प्रिपरेशन का टाइम बिल्कुल ही नहीं मिला, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन का टाइम होता उसमें मैं चली गई ओडीसी देखने के लिए। I wanted to see an ancient war and its impact, and it's a horrible impact. If the film is there, आप देखिए। Nolan is a joy to watch. He is a poetic director अपने आप में, लेकिन फिल्म का जो बात उसने कही है, जो कह रहा है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वो भी देखने लायक है। तो I would ask you, I would request you to please check me out with your doubts. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुमान जी। Please. Children, if you have anything to ask, this is your opportunity. Please go ahead. Please feel free. There are no holds barred. Good afternoon, ma'am. I do have a doubt about this. जी Can I ask? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज। Ma'am, there is a subtopic in our discussion committee about biodiversity collapse and sixth dimension extension. So can you please clarify about that? Why diversity collapses and There is a thing called the sixth extension something. sixth extension? Can you type it out in the chat box? Yeah, sure, ma'am. I'm not. Yeah, because your voice is cracking. Delegates, we would request you to confine your questions to the topic that has been discussed today. Yeah, I'll keep coming to talk to you. Don't worry about that. Yeah, if you could, if this is related to this topic, then of course. Otherwise, also, आप बताओ. लेकिन we don't want to derail the conversation. पर आप बताओ. Are you putting it in the chat box, Charu? Yes, ma'am. I did put that. Just let me check the chat box. And Charu, that would be a topic for next discussion. True. Oh, It is Okay, the about sixth mass- extinction. Okay, right. It is about the 5 mass. Yeah. Yes. Of course. But it is a completely different topic. Do you want me to talk about that, or shall we talk about it some other time? No, yeah, we can surely talk about that some other Yeah, time. because sixth extension is a full topic, and it is something which has been it's something which we need to talk about actually, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा आपकी जनरेशन को फेस करना पड़ेगा उसको। हम तो अब चल पड़े कितने दिन और because you know that there we have, as I told you in the beginning, we are. Do you know how much percentage of living beings human beings are? Do you have any idea? We are over 90%. We are over 60%, sorry, over 60%. And our domesticated animals like cows, horses, and dogs are about 30%. And the rest of the world is just rest of it. यानी 10% में बाकी पूरी दुनिया है और 90% हम लोग हो गए। सो कितना एक्सटिंक्शन हुआ है? वुली मैमथ्स का भीमबेटका की गुफाओं में वुली मैमथ्स का चित्र बना हुआ है। कैन यू सी एनी वुली मैमथ्स एनीवेयर? या कभी दादी परदादी कहीं किसी कहानी किताब में भी सुना आपने? हमारी जो 4th century AD में हमारी रामायण और महाभारत वाज पुट डाउन टू राइटिंग, क्या उसमें वुली मैमथ की चर्चा है? ऋग्वेद में वुली मैमथ की चर्चा है जो 1600 साल पहले लिखी गई, 1600 साल ईसा के पहले लिखी गई। नहीं। इजिप्ट में कहीं वुली मैमथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इजिप्ट के हायरोग्लिफिक्स में, सुमेरिया के हायरोग्लिफिक्स में, मेसोपोटामिया में। सो वी फिनिश्ड देम ऑफ अबाउट 10,000 years ago.
or 20,000 years ago, 25,000 years ago, before these Bhimbetka paintings were made, or right after the Bhimbetka paintings were made. So the fact is that we have क्रमशः एक्सटिंक्शंस अलग अलग टाइम पे हुए हैं, और अब जो ये जो 6th एक्सटिंक्शन है जो जिसको कि जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें इट्स अ काइंड ऑफ मतलब इट्स अ मैन मेड, जिसको इस युग को कई लोग कह रहे हैं एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन का मतलब ये है, एंथ्रोपोस मतलब इंसान, एंथ्रोपोसीन एज का मतलब ये है कि हम इंसानों ने इसको अपना युग बना लिया, धरती को अपना बना लिया। वी आर द मोस्ट प्रोलिफरेटिंग स्पीशीज हियर, एंड दिस इज एन ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन विच इज गोइंग ऑन। इसमें हम ना जाने कितने चीजों, आपको पता है ना, पूनो पालपुर में चीते लाए गए अफ्रीका से, हमने अपने चीते मार दिए 19th 20th सेंचुरी में। कुछ अंग्रेजों ने मारे, कुछ हमारे राजे रजवाड़े नवाबों ने मार दिए, कुछ शिकारियों ने मार दिए, हमारे चीते खत्म हो गए। दैट्स वन एक्सटिंक्शन वी डिड राइट नाउ। कुछ ही दिन, 100 साल क्या ही होता है, इट्स नॉट इवन अ ब्लिप इन ह्यूमन हिस्ट्री, और उसमें हमने मार दिए। और अब जो हम बाहर से लेकर आए वो भी बेचारे सारे के सारे निपट गए। सो देयर आर दीज थिंग्स विच बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर ये एक्सटिंक्शन बहुत सारे स्पीशीज का चल रहा है। इट्स अ प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, और इस पे पूरी लंबी बात हो सकती है, बस मैं अभी इतना ही आपको बता रही हूँ। यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन रीड अप ऑन इट। यू कैन आल्सो सी सम गुड impactful videos on National Geographic about the 6th extinction. It's a book also, एक किताब है अलग से 6th extinction करके। लेकिन इस पे लंबी चर्चा होनी चाहिए। आई एम श्योर अंशुमान जी करवाएंगे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को बुला के। Thank you, ma'am. Thank you so much for such an insightful session. Any other questions that the delegates have on the topic which has been discussed today? Aradhya has a hand. Ananya has a hand. Go ahead, please ask your question, Aradhya. Go ahead. Greetings, ma'am. Thank you so much for this wonderful session. First of all, it was really informative. My question Thank to you is that since we are a community, we are discussing about the problems as well as the solutions of the war crimes. We have discussed the problem, but what are the potential or real solutions that we can come up with according to the war crimes that are currently taking place? Because some countries are doing this, and then fact is taking over other countries. Like everyone is affected from them. True. One of the things which is very important, and Gandhi ji always used to say, कि you must raise your voice, because people think that हमारे बोलने से क्या होता है. But if you are, and especially for your generation who are so much in public, I mean, in fact, most of you have a public life. We did not have a public life. हमारी generation को public life नहीं था. जो हमें बोलना था, debate में जाके बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं. We didn't have a media where we could stop. But wherever you have the media, wherever you have an impact, talk about this. And when you talk about this, talk with information. Talk with what जो background है उसके साथ बात कीजिए. And when you talk about this, you also remember your own traditions. Your own traditions are of truth and non-violence. And tell people, and I tell people this everywhere in the world, wherever I go, I tell them, look, we have survived. We've been there with our truth and non-violence. हम खत्म नहीं हो गए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा. आपने हमको टुकड़े टुकड़े भी किया, फिर भी हम जिंदा हैं. हमारे टुकड़े भी जिंदा हैं, उनमें भी कोई खराबी नहीं आई है. मतलब वो भी हैं, वो हिंदुस्तान ही है. लेकिन वो हमारे लिए, हम जाकर किसी पे हमला करके और किसी से झगड़ा करके हमने कभी भी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, कभी नहीं किया. हु जिनताओ, ये शी जिनपिंग के पहले हु जिनताओ वाज चाइना का प्रेसिडेंट कह सकते हो, वो लोग जो भी कहते हैं उनको. तो वो हु जिनताओ ने कहा था, इंडिया ने चाइना को 2500 साल पहले जीत लिया बिना एक कतरा खून बहाए. कैसे? बौद्ध धर्म को वहां भेज के. ठीक है, वो उन्होंने कहा कि हमको शांति और अहिंसा से इंडिया ने जीत लिया था. हमने जीता, और हम वी हैव बीन प्रूवन राइट. कभी भी गलतफहमी में मत रहना. जब लोग कहें कि हम ये कमजोर हो गए, तो फला ने हम पे हमला कर दिए, तो फला उन्होंने कब्जा कर लिया, किसी ने कब्जा नहीं किया. ठीक है. इकबाल ने कहा कि ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. एंड दिस इज, वी आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, एंड आई एम टेलिंग यू दिस एज अ पर्सन हु कीप्स ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड with Mahatma Gandhi's message. I went to Mexico. वहां पे ड्रग लॉर्ड्स
सीधे सीधे पॉलिटिशियंस को मार देते हैं और उठा उठा के लोगों को ले जाते हैं, इतनी हिंसा है। और वहां पर महात्मा गांधी के नाम पर जो 15 यूनिवर्सिटीज में चेयर चल रहे हैं और एक जो कोऑपरेटिव चल रहा है जहाँ पे 60,000 किसान मिलकर के वो कोऑपरेटिव चला रहे हैं, जिसमें कि 30,000 औरतें हैं और उसका चीफ जो है वो एक 31 साल का बच्चा है, उसकी जो सहायक हैं वो 26 और 28 साल की लड़कियां हैं और ये मिलके इसको चला रहे हैं इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये इम्पैक्ट किसका है? महात्मा गांधी इज ओनली वन ऑफ द jewels that is a jewel that we produced. The core is the Indian civilization. Core is the thought that India has, and that thought is of peace and non-violence. So what you can do against war is raise your voice, tell the people it is never successful. So war is never successful. Has any war finished ever? क्या ही हो गया इराक में? अमेरिका ने घुस करके सदाम हुसैन के लिए इतना कबाड़ा किया, तो क्या फायदा मिल गया अमेरिका को? क्या मिल गया? जो कुछ नहीं हुआ है ना। इराक में मेहम मचा ही हुआ है और कहीं पे भी कोई शांति तो मिली नहीं है। और अमेरिका में और यूरोप में भर भर के इराकी पहुंच गए, जिसको लेके वो रोज रोते रहते हैं क्योंकि आपने उनके देश में रहने लायक स्थिति नहीं रखी, तो आपके देश में पहुंच गए वो इंडिया तो नहीं आ रहे हैं। वो उनको मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे, ऑलरेडी बहुत भीड़ है, ठीक है कि नहीं, तो वो वहां पहुंच गए। तो ये you need to talk about this as long as you don't have something in your hands. When you are in that impactful position, I'm sure that people like you who are sensitive enough to join a discussion like this are going to find their own solutions for their own times. And ye aayega because it's your generation which is changing the world today. Thank you. Ananya ji kuch पूछ रहे थे. Good evening, good afternoon, ma'am. Good afternoon. This session is very informative, but right now I have two questions that are going on in my mind. Yeah. The first one is that as we talked about the Russia and Ukraine war, there is Arctic and boreal regions that are found in Russia, and they have diversity over there also. But how is Russia not affected or not caring about what is going on in that region? Because it is a region full of diversity in the Arctic region. And my second question is a little related to India, because right now protest is going on in Uttarakhand for not cutting down trees to broaden the roads. India has been talking about trying to find sustainable ways to bring out development, but it is still failing to do so. What can be the possible things that we can help our country to have sustainable development? Very good questions. Very good. The Russia ka problem, if you remember in the beginning, I told you there are a handful of people. Unfortunately, usually men. I'm sorry, Anshumanji. Usually a handful of men who are crazy for power. They don't care if they sacrifice anybody. And that is Mr. Putin, who in his own complete arrogance doesn't care कि Baltic में क्या हो रहा है, Arctic में क्या हो रहा है, कहीं पे भी उसके सीज में कुछ भी ही. Do you think Russians have, you know what, Russia, I know somebody personally who ran away from Russia and hid in Goa, and मेरे बेटे के दोस्त के रिश्तेदार हैं, वो रशियन ही हैं, और उन्होंने मुझसे बोला कि हमको कैसे भी करके इंडिया से एक्सट्राडाइट मत कीजिए, नहीं तो मुझे वॉर में भेज देंगे, मेरी माँ रो रो के पागल हो रही. बच्चे छुप रहे हैं पूरी दुनिया में. मिस्टर पुतिन डजंट केयर, बच्चे मारे जा रहे हैं. सो जिसके इंसान के मरने की जिसको चिंता नहीं है, उसको सील के और मछली के मरने की क्या ही चिंता होगी, algae के मरने की क्या ही चिंता होगी. सो दीज आर पीपल हु आर पावर हंग्री, सो ब्लाइंडेड दे डोंट केयर, है ना. आपने देखा पीपल लाइक पीटर थील, सैम ऑल्टमैन, और वो एक सड़ा सा जो एक अपने को एंटी क्राइस्ट समझता है, उसका क्या नाम है मैं भूल जाती हूँ हमेशा, इसका सैम ऑल्टमैन का गुरु, वो कार्प, ही कीप्स कार्पिंग. वो ये सारे के सारे लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे दे ओनली एग्जिस्ट एंड नोबडी एल्स एग्जिस्ट्स. These are the people who found the AI to kill the children in Iran. So there are these people who are completely immoral, or not even immoral, they are immoral. They don't have a moral paradigm, and we do not belong to that world. We do not care. We belong to the world where Mahatma Gandhi said this earth has enough for every person's need, but not enough for one person's greed. So if one person becomes greedy, इस धरती के पास हर व्यक्ति की जरूरत के लिए पर्याप्त है.
आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ के लिए पर्याप्त नहीं। एक व्यक्ति अगर लोभी हो जाए, वो सारी दुनिया ही को लूट लेना चाहे, तो बेटा उसके लिए कोई उपाय नहीं। And that is the problem in Russia. That is the problem with Mr. Putin, like Mr. Trump. Now, the other question is beautiful. I really love it that you could. आज ही मैं किसी से कह रही थी कि हमारे यहाँ बच्चे एग्जाम पे विरोध कर रहे हैं, भगवान जाने बच्चे कब पर्यावरण पे विरोध करेंगे। आपको पता है कि आपके ही यहाँ कुछ दिन पहले, जस्ट गो टू योर मेन स्ट्रीम मीडिया, तो दिखाएगा नहीं, गो टू द ऑल्टरनेटिव मीडिया एंड चेक आउट, केन बेतवा लिंक बन रहा है। केन बेतवा लिंक जहां बन रहा है, वहां अभी बहुत सारे पर्यावरण कार्यकर्ता और गांव के आदिवासी पानी में लेट गए। उन्होंने कहा हमारे गांव को मत डुबाओ, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर हरसूद को डुबाया गया नर्मदा जी का डैम बनाने के लिए, और उन लोगों का जो छनेरा में विस्थापन हुआ, चेक इट आउट हाउ दे आर लिविंग, इट्स हॉरिबल। व्हाट यू डू इज प्राउड, वेरी ट्रेडिशनल एंड एब्सोल्युटली यूनिक हमारे ट्राइब्स, उनको हमने उनके घरों को डुबा के और उनको हम स्लम में मजदूर बना के भेज देते हैं। दे हैव एब्सोल्युटली नो फ्यूचर। तो ऐसे हम करते हैं, और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, बीच बड़ी बड़ी सड़क पे, वो किसके गांव को नष्ट करके बना है। सो अनलेस यू रिकग्नाइज दैट you are a citizen of India, you are the person who has the responsibility for the Constitution of India, and that this is your country, these are your people, तो वो नहीं करोगे तब तक आपको ध्यान नहीं आएगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपको उत्तराखंड का ध्यान आ रहा है। मैंने आपका ध्यान आपके मध्य प्रदेश के, आपके जबलपुर के पास के केन बेतवा लिंक के बारे में बताया, तो इसके बारे में आवाज उठाइए। कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप आवाज उठाते हैं तो। आवाज उठाने वाले को कोई कुछ, आप सत्य ही तो बोल रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग सत्य बोलने लगते हैं, कुछ दिन के लिए सत्य को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, आप देखिए, आपको ध्यान आएगा कि दो बार नीट का झगड़ा उठा, हल्ला उठा, बच्चों ने हल्ला किया, लेकिन जब वो एक क्रिटिकल पॉइंट आया, तब उसके बाद चीजें बदल गई। तो ऐसे ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। सोनम वांगचुक पहली बार थोड़ी बैठे हैं भूख हड़ताल पे, वो लद्दाख में भी भूख हड़ताल पे बैठे थे, है ना। कि लद्दाख में क्या करने गए थे ये लोग? ये सोलर का इतना बड़ा बनाने गए थे कि वो लद्दाख पूरा, आप अगर लद्दाख जाओगे, अगर नहीं गए हो तो जब मौका मिले तो जाना। इट्स अ लूनर लैंडस्केप, एकदम यूनिक ही है, दुनिया में ही कहीं ऐसा लैंडस्केप नहीं। और वहां पर अगर आप फैक्ट्रियां लगाओगे और वहां पे अगर आप खुदाई करोगे, अरे कितना ही पैसा कमाओगे आप, कितना ही क्या करोगे। कोई चीज की एक लिमिट होनी चाहिए किसी के लिए, तो वो कौन बोलेगा? जब हमारी ओनरशिप होगी मध्य प्रदेश के ऊपर, हमारी ओनरशिप होगी हमारी नदियों के ऊपर, हमारी ओनरशिप होगी हमारे जंगल के ऊपर, और हमारी रिश्तेदारी होगी हमारे ट्राइब्स के साथ में, हमारे गांव के लोगों के साथ में। अगर ये हमारे साथ हो जाएगा, इफ ये इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्टेडनेस हो जाएगा ऑफ सिटीजन्स, देन गवर्नमेंट्स विल हैव टू स्टॉप एंड थिंक, बिकॉज वी नीड टू डू दैट। और कोई नहीं कर सकता। अमेरिका में लगा नहीं पा रहे ये वो डेटा सेंटर्स, आपको पता है, और जाके ये पागल सारे के सारे मिडिल ईस्ट वाले इन्होंने वहां लगाने दिया, और ये ईरान के टारगेट भी बन चुके पूरी तरह से। तो अमेरिका में लगाने नहीं दे रहे, लोग सड़क पे आ जा रहे हैं, हंगामा मचा दे रहे हैं, और हम सिर्फ आपस में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे नहीं 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 ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आवाज उठाने से कभी कुछ नहीं होता, बातचीत करने से, इंटरकनेक्टेड होने से, लिंक करने से कुछ नहीं होता। एंड देयर आर फोरम्स जहां पे आप इन आवाजों को उठा सकते हो। आपका जो ये यूएन का फोरम है, दिस इज अ ब्यूटीफुल फोरम, एंड आई कंग्रेचुलेट अंशुमान जी फॉर स्टार्टिंग दिस फोरम वेयर यंग पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और ये ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर आपने यहाँ कोई बात कही तो रह जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और जाएगी वो। ये एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल फोरम एंड प्लीज कंटिन्यू दिस, और आप आगे भी इसको बोल सकते हो। फर्स्ट एट योर स्टेज इन लाइफ, टॉक अबाउट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थिंक अबाउट दिस, गेट योर सेल्फ knowledgeable about this, informed about this। और अब जब informed होकर बात करोगे तो आपको जवाब कोई नहीं दे पाएगा, और जवाब नहीं दे पाएगा तो रुकेगा, सोचेगा और अपनी चीज को बदलेगा, है ना। Thank you so much. Absolute pleasure listening to you, and such a learning experience for all of us. Darshana, Kirti, please go ahead. Thank you so much, ma'am, for such an enlightening session that you've taken today. And I extend my sincere gratitude on behalf of everyone who's present here.
And thank you for taking time today and interacting with the students. My pleasure. It's an honor for me to talk to young people and to get to know you and Anshumanji, of course. Thank you so We much. will bother you once again, at least. No, if I'm around, certainly. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.